To all of you, dear students, as we discussed earlier, that what is the system of the British period, what is settlement, and like Monroe settlement, Monroe and Rayatwari settlement and Mahalwari settlement. So crops for Europe we had discussed earlier, and after we will discuss about why the demand for Indian indigo. So मतलब ऐसा क्या था इंडियन इंडिगो में कि इट इज़ द वेरी डिमांड एट दैट टाइम. सो द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमली इन द ट्रॉपिक्स. सो जो इंडिगो है वो प्राइमली जो ग्रो करता है वो ट्रॉपिक्स पे ग्रो करता है. सो इट इज़ अ नेचुरल क्लाइमेट जो है उसका वो है ट्रॉपिक्स है. ठीक है. बाय द 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturer in Italy, France and Britain to dye cloth. Okay. So these countries were import this Indian indigo, but there is a small amount of Indian indigo reached the European market, and its price was very high. European clothes manufacturer therefore had to depend on another plant called woad. So, वो वोट का भी यूज करते थे टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज, वायलेट और ब्लू डाइज करने के लिए. बट देयर इज वोट का यूज इसलिए करते थे बिकॉज इट इज़ ग्रो ऑन टेम्परेट जोन एंड वोट वाज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप. So it was grown in northern Italy, South France, and in the parts of Germany and Britain also. So worried about the competition from indigo, wood producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. So there is a important thing that जो वोट प्रोड्यूसर्स थे दे वर प्रेशराइज्ड टू द गवर्नमेंट. यूरोपियन गवर्नमेंट्स में अलग अलग जो कंट्रीज थी उन्होंने दे वर प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो फ्रॉम इंडिया. एंड बिकॉज ऑफ देयर इज उनका जो है वो ट्रेड है वो कम हो रहा था. बट cloth dyes however preferred indigo as a dye. जो क्लोथ डाई करने वाले थे तो दे प्रिफर द इंडिगो एज अ डाई, एंड इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर एंड इट इज़ अ डार्क ब्लू कलर. सो बाय 17th century European cloth producer persuaded their government to relax the ban on indigo import, and the French began cultivating indigo in Saint Domingue in a Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also come up in many parts of Northern America. So हुआ क्या है कि जो फ्रेंच ने जो इनके कॉलोनीज थे सो देवर ग्रू द इंडिगोज इन देयर कॉलोनीज एंड लाइक सेंट डोमिंगो कैरिबियन आइलैंड में एंड इंग्लिश इन जमैका. पोर्टुगीज ने ब्राज़ील पे अपने कॉलोनीज पे क्या करना स्टार्ट कर दिया इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो कम अप इन many parts of Northern America. So by the end of 18th century the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased for exciting supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons between 1783 to 1789. The production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new source for indigo supply. From where could this indigo be procured? So इसमें यह है कि सिंपल सी बात जो नील की जो मांग बढ़ी उससे क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आने वाली जो है जो उन लोगों को डिमांड आती थी तो किसी रीज़न से क्या हो गई उनकी जो डिमांड थी वो बंद होना स्टार्ट हो गई. अब हुआ क्या है कि देखो 1783 टू 1789 के बीच में जो वर्ल्ड में क्या हुआ कि जो नील का जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया हाफ हो गया. तो अब ब्रिटेन चाहता था कि उन्हें क्या है नील कहाँ से मिले. देयर इज़ अ प्रॉब्लम डेट where does they produce the indigo
and what is the place that they were grow the production of the indigo. So ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. देखो ब्रिटेन जो है वो अब इंडिया की टर्म्स में आया बिकॉज फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरियाज अंडर इंडिगो कल्टिवेशन. तो अब ये इंडिगो कल्टिवेशन के लिए क्या करने लगे, इसके लिए एक वे ढूंढने लगे. ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट. तो बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेशन है इट इज़ स्प्रेडिंग एंड लाइक देयर इज एग्जांपल दैट 1788 में 30% इंडिगो जो है वो इम्पोर्ट करता था ब्रिटेन. अब 1810 में क्या हुआ कि 95% इम्पोर्ट होने लगा ब्रिटेन से इंडिगो. सो देयर इज अ इंडिगो का जो ट्रेड है ये बहुत ही कॉमर्शियल होने लगा. तो जो कॉमर्शियल एजेंट हैं देवर जो हैं अपना जो वेल्थ है, जो अपना जो ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिसर लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस एंड अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स. सो देयर इज अ जितने भी ऑफिशियल्स जो लोग थे वो क्या करने लगे, अब इंडिगो पे क्या करने लगे, वो पैसा लगाने लगे. ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ आती है कि हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो किस तरीके से बनती थी. देखो इंडिगो का भी एक तरीका होता था. देयर इज अ टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. एक तो थी नीच एंड एक थी रियाती. सो देयर इज अ नीच कल्टिवेशन में क्या होता था, जो नीच सिस्टम था उसमें क्या होता था, जो प्लांटर प्रोड्यूस जो है वो इंडिगो जो प्लांट जो प्रोड्यूस करते थे वो अपने लैंड में प्रोड्यूस करते थे. ठीक है, या किसी जमींदार से क्या करते थे वो देवर बोरो द लैंड और रेंटेड पे जो है वो लैंड लेते थे और या उससे खरीद लेते थे. तो वहाँ पर जो क्या करते थे कल्टीवेट करते थे. बट देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर नीच कल्टीवेशन. नीच कल्टीवेशन में प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लांटर्स थे they were expand the area under niche cultivation but there is a lack of area to growing the indigo. So तो प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो के लिए क्या चाहिए था, इन दे वांटेड द more land but there is a problem. There is no fertile land because of there is a dense area of the fertile land और वहाँ पर काफ़ी लोग बस चुके थे. तो अब क्या हुआ कि nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. तो उनके लिए एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उन लोगों को लेबर्स का इंतज़ाम करना होता था. ठीक है, और बड़े प्लांटेशन में उनको रिक्वायर होता था नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. ओके, एंड देयर इज अ प्लग जो था niche cultivation on large scale also required many plug and bullocks also. लाइक अगर 1 बीघा अगर इंडिगो कल्टीवेशन करना है उनको तो उसमें क्या होता था कि उनको 2 प्लग की ज़रूरत पड़ती थी. 2 प्लग्स दे रिक्वायर टू 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन. बट देयर इज मीन अगर किसी के पास 1000 बीघा अगर लैंड है सो दे वुड नीड 2000 plug and 2000 bullock also. So there is a problem to the niche cultivation and उसमें ये प्रॉब्लम्स होती थी. तो till the late 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. So इस सिस्टम में 25% ही क्या था, इंडिगो कल्टीवेशन होता था. अब रेत इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेत. अब रेत की जो लैंड थी उस पर किस तरीके से जो नील जो इंडिगो है उसकी ये लोग कल्टीवेशन करते थे. इंडिगो को नील कहते हैं. ठीक है, बिकॉज ये क्या है, नीला रंग छोड़ता है, ब्लू कलर छोड़ता है, तो इसे नील कहा जाता है हिंदी में. तो जो अंडर द रेती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रेत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट जिसे सट्टा कहते हैं. ठीक है, एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑन द रेत. देखो इनके साथ एक सिस्टम क्या था कि वो लोग प्रेशर करते थे रेत को और उन्हें क्या करते थे कि
चीपली इंटरेस्ट पे क्या करते थे वो लोग, उनको एडवांस दे देते थे और उनसे कहते थे कि 25% अपनी लैंड पे 25% लैंड एरिया पे वो क्या करें, इंडिगो को कल्टीवेट करें। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट फर्स्ट में तो पीजेंट्स को लगा, फार्मर्स को लगा कि इट इज़ अ वेरी गुड एग्रीमेंट। बट धीरे धीरे जब उनको क्या लगा कि उनको जब वो इंटरेस्ट सही से नहीं दे पाए एंड दे वर नॉट गिविंग टू देम अपना प्रिंसिपली वो नहीं दे पा रहे थे, तो उनको उनको प्रॉब्लम आने लगी। और उसमें क्या होने लगा कि समस्या ये थी कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट there were other problems to the planters. Usually instead that indigo be cultivated on the best soil in which pigeons prefer to cultivate rice. Indigo moreover had deep roots and it excavated the soil rapidly. So there is a problem that जो उनकी रूट्स होती थी इंडिगो की वो बहुत गहरी होती थी, तो वो सॉइल से सारी उसकी फर्टिलिटी खींच लेती थी। सो उनको उसी में क्या था, वीट भी उनको ग्रो करना था, राइस उनको ग्रो करना था, कल्टीवेट करना था, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, तो उसके लिए वहाँ वो राइस की कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। अब देखो उसमें क्या हुआ कि अब देखो कुछ ज़्यादा अगर अति हो जाती है तो देयर इज़ अ रेवुलेन ऑल्सो, रेवुलेशन वहाँ होता है। तो ब्लू रेवुलेन भी हुआ। तो उसके बाद ब्लू रेवुलेन के बाद क्या हुआ, इन मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रैत इन बंगाल रिफ्यूज अ ग्रो इंडिगो। उन्हें रेवलेन को स्प्रेड किया और दे रिफ्यूज टू पेरेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म विद सॉर्ड एंड स्पेयर्स ऑल्सो बो एंड एरोज। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स। तो ये सारे लोग क्या हैं, इन लोगों के लिए क्या है, इन जो एजेंट्स होते थे, गुमास्ता होते थे, जिन्हें गुमास्ताज कहते थे, जो एजेंट्स होते थे, उनको उन लोगों ने बीट करना स्टार्ट कर दिया। उनका रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वो रेबलन हो चुके हैं। अब इंडिगोज जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, दे वर नॉट वांटेड टू ग्रो द इंडिगो, टू कल्टिवेट देयर इंडिगो इन देयर फील्ड्स। ओके, अब क्या है कि इन 1859 में क्या हुआ कि इंडिगो रैट फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट द लोकल जमींदार एंड विलेज हैंड। देखो विलेज हेडमैन और लोकल जमींदार का भी उनको क्या मिला, सपोर्ट मिला। बिकॉज ऑफ क्या है कि वो प्लांटर्स को, क्योंकि प्लांटर्स की क्या थी, उनकी पावर बढ़ रही थी, तो जमींदार डिडंट वांट दैट कि प्लांटर्स की क्या हो, पावर बढ़े। तो प्लांटर्स, तो जमींदार, जो लोकल जमींदार होते थे और जो विलेज हेडमैन थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि 1859 में इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जो इंडिगो रेबलेन थे। तो इनको इंडिगो जो पिजन्स थे उनको क्या करना स्टार्ट किया, सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एंड जो लथियाल्स होते थे उनके साथ उनकी बैटल हुई। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रैट टू रेसिस्ट द प्लांट्स। ओके, द इंडिगो पिजन्स also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another population rebellion. So, in 1857 में जैसे कि देखो एक रेवोल्यूशन हो चुका था, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि अदर जो है और भी रेवोल्यूशन हो। सो दे वांटेड टू सॉल्व दिस वन प्रॉब्लम, ठीक है, इंडिगो पिजन्स की जो है वो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करना चाहते थे। तो यहाँ पर रैयतों को जो एग्रीमेंट था इंडिगो का, उसको मानने के लिए जो है उन्होंने मजबूर नहीं किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक 1857 में 59 में, ठीक है, एक इलाके का उनने क्या किया, एक उनने दौरा किया और उसमें ये बताया कि उन्होंने ईडन मजिस्ट्रेट जो एस्ले ईडन थे उनको उन्होंने एक नोटिस जारी किया और कहा कि अब रैयतों को दे वुड नॉट बी forced to grow the cultivation the indigo. Okay, so the indigo peasants also imagine the British government would support them, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जो रैयत से अब उन लोगों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ जो ईडन जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी क्या कर दिया, नोटिस जारी कर दिया। तो एक समिति जो है वो देयर एक इंडिगो कमीशन जो है वो बना और इंडिगो कमीशन ने क्या डिसाइड किया कि
अभी तक जो भी इंडिगो कल्टीवेट हो रहा है फ़िलहाल तो वो कल्टीवेट रखा जाए और जितनी अभी डिमांड है इसको पूरा किया जाए। और आगे से जो है नो वन कैन फोर्स टू द इंडिगो pigeons to grow the or cultivation the indigo. Okay, so worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planter guilty and criticized them for the coercive method they used with indigo cultivators. So it is very sinful. ठीक है, तो द कमीशन आस्क्ड द रेयर टू फुलफिल देयर एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। फिर बाद में क्या हुआ कि जब 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी ने इसके लिए जब साउथ अफ्रीका से वो रिटर्न हुए तो उन्होंने क्या किया कि बिहार में चंपारण में उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन भी किया। ठीक है, चंपारण मूवमेंट के नाम से जिसे जाना जाता है इंडिगो प्लांटर्स के लिए। सो इस चैप्टर में देखो किस तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो पिजन्स, ठीक है, इंडिगो जो फेमस है उन लोगों ने किस तरीके से रेवोल्यूशन किया और किस तरीके से जो है वो बिजनेस, इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस है। ये सारी चीज़ें क्या हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने बिजनेस में जो कंपनीज हैं उन्होंने बिजनेस किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें जानी और आगे जो है 1857 और अदर जो आदिवासी हैं उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।